ان سے دور ہو کر کے بے دینی کے راستے پر چل کھڑے ہوتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا دین یہی ہے، شریعت یہی ہے۔ محرم الحرام پہلا مہینہ ہے اور خوشی کا مہینہ ہے، مگر ہم اپنے عمل سے اس مہینے کے خلاف تاثر دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے ہمارے عمل سے، ہماری حرکت سے اسلام کی تائید ہو، اسلام کا ایک ایک عمل دنیا کے سامنے ظاہر ہو۔ آج دوسری قوم وہ اسلامی کتب پڑھے بغیر، اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کیے بغیر، مسلمانوں کے حرکات و سکنات سے، مسلمانوں کے برے عمل سے اسلام کے متعلق غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ہمارے وہ نوجوان جنہیں آج اعلیٰ اور معیاری خدمات انجام دینے چاہیے، وہ خرافات کے کام میں ملوث ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارا نوجوان آج اپنے عمل سے دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا لڑکا ہوں، میں غریب گھر میں پیدا ہوا ہوں اور غریب رہوں گا۔ عام طور پر دنیا جانتی ہے کہ مسلمان انتہائی غریب اور مفلس قوم ہے، اور اس ہندوستان کی دھرتی پر، اس ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کی ایک خاص حیت اور شبیہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھی مسلمانوں کا نام لیا جاتا ہے تو دوسری قوم کے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ وہی ٹانکا لگانے والا، وہی پنچر لگانے والا، وہی ویلڈنگ کی دکانوں میں کام کرنے والا، چائے خانوں میں آنے والے گراہکوں کو چائے پروسنے والا۔ لوگوں کے ذہن میں یہی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اگر برہمن قوم کا نام لیا جائے تو ان کے ذہن میں اعلیٰ عہدے، معیاری خدمات کے تصاویر اور امیجز ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ دن بھر آوارہ گردی کرنا اور جب محرم کا چاند نظر آئے تو اس میں اور اضافہ ہو جانا۔ محرم الحرام سے پہلے بھی کوریکس، فینسیڈیل، الپرازولم کی گولیاں کھانا، لیکن محرم کا چاند نظر آ جائے تو ان گولیوں کے کھانے کے ساتھ ساتھ، ان نشیلی چیزوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں کہ اب صرف ان چیزوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اب ہم ڈھول کی تھاپ پر ناچیں گے بھی، کودیں گے بھی اور لاٹھی بھی پھیریں گے۔ شراب کے نشے میں مست ہو کر سڑک پر چلنے والے لوگوں کی گاڑیاں بھی روکیں گے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو۔ اگر گاڑیاں روکنے کی وجہ سے گاڑی والا کچھ بولے تو ڈنڈا اس کے سر پر بھی ماریں گے۔ لگتا ہے کہ اسلام نے یہ اتھارٹی مسلمانوں کو دے دیا ہے، نوجوانوں کو یہ پاور سپلائی کر دیا ہے کہ محرم کا مہینہ آ جائے تو تمہارے لیے یہ خرافات کرنا بالکل آسان اور جائز ہے، اور لگتا ہے کہ اس میں ثواب بھی ہے۔ نوجوانوں، آپ کسی علاقے کا، اپنے ملک کا اگر پی ایم نہیں بن سکتے، سی ایم نہیں بن سکتے تو ڈی ایم تو بن سکتے ہیں، کلیکٹر تو بن سکتے ہیں، ایس ڈی او تو بن سکتے ہیں۔ آپ کا کام تو یہ تھا کہ آپ پڑھ لکھ کر کے اچھا انسان بنتے، قوم کی رہنمائی کرتے، قوم کے دبے کچلے طبقے کو آگے بڑھاتے، اوپر لے جاتے، معیاری جگہ تک اور مقام تک ان کو پہنچاتے۔ مگر آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارا عمل ہی یہی ہے، ہماری قوم ہی دبی کچلی تھی اور دبی کچلی ہے اور دبی کچلی رہے گی۔ اے نوجوانوں، کب ہوش کے ناخن لوگے؟ پڑھائی میں ان کی طبیعت نہیں لگتی، چوک چوراہوں پر آوارہ گردی ان کو پسند ہے۔ اگر یہ پڑھنے جائیں تو یہ سوچتے ہیں کہ میں پڑھنے چلا جاؤں گا تو چوک کی رونق ختم ہو جائے گی، زینت ختم ہو جائے گی، کون چوک کو آباد کرے گا، کون مٹر گشتیاں کرے گا، کون آوارگی کرے گا۔ رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک چوک پر
चौराहे पर, घर के करीब, किसी कलभट पर, ऊंची जगह पर बैठकर मोबाइल चलाने वाले लोग, साल साल भर गंदी गंदी फिल्में देखने वाले लोग, गंदी गंदी तस्वीर देखने वाले नौजवान, मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो कंट्रोल होने के बजाय और ज़्यादा उछल पड़ते हैं और बुराई की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। अभी मस्जिद में इतने लोग इस गांव के होंगे कि उंगलियों पर गिने जा सकें, नौजवानों की तादाद है नहीं, चंद बच्चे हैं और चंद बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं। अगर यहीं पर ढोल लेकर के आ जाए तो फिर लोगों का हुजूम लग जाएगा। ईमान मर चुका है, ईमान का जनाजा निकल गया है। ऐ मुसलमानों, किस मुंह से जन्नत में जाने की बात करते हो? किस मुंह से जन्नत में जाने की बात करते हो? अरे जन्नत में जाना इतना आसान थोड़े ना है। अगर जन्नत में जाना इतना आसान होता तो जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला बनाते ही नहीं। जहन्नम में जाना बहुत आसान है, लेकिन जन्नत में जाना बहुत मुश्किल है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत और जहन्नम बनाई तो हज़रत जिब्राइल अमीन से कहा कि जिब्राइल जाओ, मैंने जन्नत और जहन्नम बनाई है, ज़रा नज़ारा करके आ जाओ, देख करके आ जाओ। हज़रत जिब्राइल अमीन ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला, आपने जन्नत बड़ी आशाइश की चीज़ बनाई है, आपने बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है कि इंसान और दूसरी मखलूक़ात कोई भी जन्नत के बारे में सुन ले, जन्नत की खूबियाँ सुन ले, जन्नत की क्वालिटी का उनको इल्म हो जाए तो फिर वो हरगिज़ हरगिज़ जहन्नम में जाना नहीं चाहेगा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, आपने जन्नत बनाई और जहन्नम भी बनाया, मगर कोई भी जहन्नम में जाना नहीं चाहेगा। मेरे मौला, आपने जहन्नम बनाया क्यों? जिब्राइल अमीन ने रब्बे करीम से पूछा। रब्बे करीम ने जवाब दिया कि जिब्राइल, आगे भी तो सुनो कि मैंने जन्नत बनाया और जहन्नम बनाया, मगर जन्नत को दुनिया की मशक्क़तों में, शरीयत के ऊपर अमल करने में जो परेशानियां आएंगी उनके एवज़ में जन्नत रखा है। उन परेशानियों से, मशक्क़तों से, नफसानी ख्वाहिश से बचने से जन्नत को मैंने ढक करके रखा है, और जहन्नम को मैं इस तरह से भरूंगा कि लोग दुनिया में मौत को भूल जाएंगे, जन्नत में जाने की तमन्ना ज़रूर रखेंगे, मगर काम जन्नतियों वाला नहीं करेंगे। जिब्राइल, अब बतलाओ कि लोग ज़्यादातर जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? जिब्राइल अमीन ने बतलाया, फरमाया कि ऐ रब्बे करीम, तब तो ज़्यादातर लोग जहन्नम में जाएंगे। ये कौम सुधरने का नाम नहीं ले रही, ये कौम दिन ब दिन बिगड़ रही है। इस कौम के नौजवान दिन ब दिन खुराफात में मुलव्वस होते जा रहे हैं। दिन ब दिन इसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। ज़ख्म एक हो तो कह दूँ है यहाँ, ज़ख्म है हज़ारों, लगाऊँ मरहम कहाँ कहाँ। इस मुसलमानों के मुआशरे में अनगिनत ख़राबियाँ, अनगिनत बीमारियाँ हैं, और इनका इलाज जो है वो इलाज भी कारगर नहीं है। बतलाइए, अगर किसी इलाके में मलेरिया फैल जाए, लोगों को डेंगू बुखार हो जाए, मौलवी साहब को बुला करके, डॉक्टर साहब को बुला करके मलेरिया के ख़िलाफ़ तकरीरें करवा दीजिए कि बड़ा ख़तरनाक मच्छर है, वो मच्छर अगर काट ले तो फिर इंसान बीमार पड़ जाता है, कपकपी के साथ उसको बुखार आने लगता है, इलाज ना किया जाए तो इंसान मर जाता है। क्या इस तकरीर से मलेरिया भाग जाएगा? बोलिए भाई, ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। अगर डेंगू हो जाए, तकरीर कर दें डेंगू के ख़िलाफ़ कि ये मच्छर डेंगू फैला रहे हैं और इन मच्छरों के डेंगू की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो क्या जो डेंगू का मरीज़ है वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। उन्हें कड़वे इंजेक्शन देना पड़ेगा, कड़वी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। हमारी कौम का नौजवान, हमारी बिरादरी का नौजवान सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जलसे हो रहे हैं, तकरीरें हो रही है, उलमाए किराम आ रहे हैं, मगर इन नौजवानों को फुर्सत नहीं है कि उलमा की बातों को सुने। अमल करना तो बड़ी दूर की बात है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कैसे इनका इलाज किया जाए? आखिर बेराह रवी से
सीधा रास्ते पर इनको कैसे लाया जाए, वो कौन सा इंजेक्शन होगा, वो कौन सी टॉनिक होगी जिसके ज़रिए से हमारे नौजवान सुधरेंगे। ज़रा आप बतलाइए, आप अक्लमंद लोग हैं, आप होशियार लोग हैं। मेरे ख़याल से इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि घर के गार्जियन बचपन ही से उसकी सही तरबियत करें, घर के अफराद उनकी सरजनिश करें। अगर आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता है, आप गैरतमंद बाप हैं, तो हाथ में डंडा लेकर बेटे को समझाइए कि मैं तुम्हें इस खुराफात के काम में जाने नहीं दूंगा और हरगिज़ जाने नहीं दूंगा। जब बच्चा रहता है, उम्र कम रहती है, गलत करता है, तो हम और आप यही समझते हैं कि छोटा बच्चा है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा, संवर जाएगा। लेकिन वहाँ हम ये भूल जाते हैं कि अगर छोटे बच्चे की तरबियत की जाए तो यकीनन वो बेहतर बनेगा, अच्छा बनेगा। वहाँ नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये बच्चा है। जब उम्र बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे उसकी बुरी आदत भी पक्की हो जाती है। उस वक्त रोने के अलावा कोई चारे कार नहीं होता। ये मस्जिद खाली पड़ी है। चंद दिनों पहले मालूम हुआ कि मस्जिद के करीब में नाच गाने का प्रोग्राम था, वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। आज अल्लाह की मस्जिद खाली है, दूर दराज से उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हुए हैं, मगर नौजवान इतने सुस्त और काहिल हो गए हैं कि ये हरकत करना पसंद नहीं करते। ये हमारे नौजवान हैं, ये वो नौजवान, यारे इस उम्मत के नौजवान तो वो थे जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए दरिया के किनारे पहुँचे, दरिया पार करके किनारे पहुँचे तो कश्तियों में आग लगा दिया कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। या तो कुस्तुनतुनिया को फतह करो या फिर जामे शहादत पी करके अल्लाह के हुजूर में पहुँच जाओ, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। ऐ नौजवानों, तेरे बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ऐ नौजवानों, तेरा ज़मीर मर गया, ऐ नौजवानों तेरा दिल मुर्दा हो गया, तेरे जिस्म की ताकत व क़ुव्वत